टॉपिक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमारा जो है इंटरनल स्टेक होल्डर्स से हेल्प लेकर हम लोग कंपनी को रिवाइव कर रहे हैं। सो वी आर रिवाइविंग अ लॉस मेकिंग कंपनी। इसी को हम लोग रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, जहां पर आप देखोगे कि जो बैलेंस शीट है ओवर वैल्यूड बैलेंस शीट को हम लोग नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड, company is making too many losses from many years, they are facing financial crisis. Because of that we are restructuring the company by taking help of stakeholders. Who are the stakeholders? Stakeholders are shareholders, equity shareholders, preference shareholders, debenture holders, creditors. Okay, so all these stakeholders are going to sacrifice some amount. Company will reduce its liability, and in this way the corporate or company will be restructured. So in this corporate world, if you want to survive, either you have to go for merger or acquisition, or you have to take a help of internal stakeholders by downsizing the company. There is too much pressure to pay the loan amount. There is too much pressure of creditor to pay the amount, but they know the company's problem. They know the problem of company, that they are making losses from many years. So it is a serious issue. Financial crisis is a very serious problem, and in the audit they have come to know that we have to reduce some assets so that we have to reduce some liabilities, we have to reduce some assets, otherwise the company will not be able to survive. So all the old organizations, they have to restructure themselves, and they have to keep up with the best practices to remain competitive. So redesigning the business is to ensure that company is surviving in the market, and we will keep the new management structure, and there will be changes in communication and reporting, and many people will be removed from the company because company cannot pay high salaries to old employees. So this is corporate restructuring, change in the business strategy resulting in diversification or closing some parts of business. We are closing some units. Why there is a need of closing some units of business? Because those units are not performing, they are not giving any returns. So corporate restructuring is a big decision taken at the top level. You are reorganizing business operations and trying to achieve the long-term and short-term objectives. So many finance-related issues you will find. Bankruptcy. Okay, you don't have enough cash. Okay, some companies are trying to buy out your company because you need a help. So for expansion purpose also, sometimes for expansion purpose, mergers take place. What is internal reconstruction of companies? In this, we are taking help of internal stakeholders, debt, debenture holders, creditors, and debenture holders, creditors, equity shareholders, preference shareholders. We are taking help from them, and we are reducing their liability. Capital reduction is also called as reconstruction account.
In objective, this will be questioned. What is capital reduction? It is a reconstruction account. Now, this is a simple case study. From 2014 onwards, company was having loss. In 2015, they were having loss. 16 loss. 2017, they have a loss. 2018, they have a loss. So last 5 years, they were having loss in the company. So right from starting 2014 onwards, company was in loss. They asked a consultancy firm to give some suggestion. Consultancy firm said that your balance sheet is showing goodwill. How can you have goodwill in the balance sheet if company is in the loss? You have to remove the goodwill from your balance sheet because you are having a loss. You cannot have goodwill at the same time. गुडविल मतलब जो कंपनी सुपर प्रॉफिट अर्न करती है उसका गुडविल दिखना चाहिए. ये कंपनी तो प्रॉफिट कमाती नहीं है, सुपर प्रॉफिट की बात ही नहीं है यहाँ पर. दूसरी बात, मशीनरी और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नहीं किया है उन्होंने, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी वहां पर लिखे हुए हैं. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें वहां पे होनी नहीं चाहिए एसेट्स में, जिसकी वजह से एसेट्स ओवर वैल्यूड हो रहा है. So assets are overvalued. We have to remove all these fictitious assets from the asset side. फिर कंसल्टेंसी फर्म ने और डीप में देखा तो लाइबिलिटी साइड में उनको जनरल रिजर्व दिखाई दिया. फिर उन्होंने पूछा कि हाउ कैन यू हैव जनरल रिजर्व इन द सिक कंपनी. अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही नहीं है, लॉस है इतने सालों से, तो जनरल रिजर्व कहाँ से आया. तो ये भी हम रिमूव कर देंगे. Okay, next, they have borrowed money from a bank at a very high interest rate. कंसल्टेंसी फर्म ने बोला कि आपने जो लोन लिया है क्या आप वो पे कर पाओगे. ठीक है, उनसे क्वेश्चन किया कि आपने जो बड़ा इंटरेस्ट के साथ लोन लिया है तो आप क्या पे कर पाओगे. हाउ विल यू पे द इंटरेस्ट अमाउंट इफ यू हैव लॉसेस फ्रॉम सो मेनी इयर्स. सो ऑल दीज नीड टू बी corrected, right? Number 1, we will remove the goodwill. Number 2, machinery and building we will depreciate. Number 3, we will remove the fictitious assets like preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, and you will remove the general reserve because there is a loss from many years. And if you have borrowed a loan at a higher cost, how you will pay the interest amount that you are going to justify. So we are trying to bring the company back on track. Before liquidation, you can go for internal reconstruction. तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज ये आपने सीखा होगा कहीं ना कहीं किसी सेमेस्टर में कि कंपनी वाइंड अप होती है. वाइंडिंग के पहले हम लोग को ऑप्शन होता है कि हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इसमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग को NCLT, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल, they will give you permission to reconstruct the company, NCLT, to reorganize the structure and affairs of the company. So because of heavy losses, you are going to revalue the assets of the company. You are going to eliminate the fictitious assets, goodwill, patent, copyrights. You will wipe out the accumulated losses and profit and loss debit balance. अगर आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है असेट साइड में P&L का डेबिट बैलेंस, तो आप उसको क्वेश्चन में अगर दिख रहा है असेट साइड में गुडविल दिख रहा है, P&L का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो वो आपको एलिमिनेट करना है. यानी कि कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में लिखना है तो गुडविल,
to patents to copyrights, because we have to eliminate these things, and capital reduction account will be debited, और जो भी ये assets है वो credit side में आ जाएंगे. To goodwill, to patents, to copyrights, to P&L. डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या बताया मैंने, आप लोग लिखो चैट बॉक्स में. वी आर रीवैल्यूइंग द असेट्स, वी आर रिमूविंग गुडविल, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. ये तीनों बैलेंस शीट से रिमूव करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमिनेट. हमारा जर्नल एंट्री क्या आएगा इसके लिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट, टू कॉपीराइट, टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट में आ गया, हमने ट्रांसफर कर दिया. इसका लॉस कहाँ पे ट्रांसफर किया, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया. इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ. बीइंग गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. Okay, so before liquidation we have to go for reconstruction. Negotiate with equity and preference shareholders to sacrifice some amount. जो अमाउंट ये सेक्रीफाइस करेंगे वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा. कहाँ पे क्रेडिट होगा, वैसे हम P&L में क्रेडिट करते हैं, हर जगह पर P&L का नाम निकाल देंगे और कैपिटल रिडक्शन का नाम लिखेंगे. वैसे सब कुछ क्रेडिट इनकम जो भी होती है हमारी वो P&L के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. ऑल द रिजर्व्स विल बी वाइप्ड आउट. नेगोशिएट विद क्रेडिटर्स एंड बैंक्स टू सैक्रिफाइस सम अमाउंट. यहाँ पे क्रेडिटर्स और बैंक्स आपको कुछ अमाउंट वेव ऑफ कर देंगे. लॉस मेकिंग कंपनी को हमें प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना है. तो हमारी जब लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, इक्विटी की लायबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेफरेंस की लायबिलिटी कम हो जाएगी, रिजर्व्स हमारे वाइप आउट हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स आपको वेव ऑफ कर देंगे, बोलेंगे कि हम लोग को पेमेंट नहीं चाहिए. बैंक भी बोलेगी आधा लोन हम लोग को मत दो. ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस हो जाएगा. तो ये सब की जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो डायरेक्टली हमें क्या फायदा होता है, जब हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हम लोगों को इनकम होगा, राइट. लायबिलिटी रेड्यूस, दैट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, तो व्हाट विल बी द एंट्री, जब इक्विटी की लायबिलिटी कम होती है तो इसको इक्विटी को डेबिट करेंगे. प्रेफरेंस की लायबिलिटी कम होती है तो प्रेफरेंस को डेबिट में लिखेंगे. रिजर्व्स अगर हमें वाइप आउट करने हैं तो रिजर्व्स को डेबिट में लिखेंगे. जो भी रिजर्व हो ना, कोई भी जनरल रिजर्व हो या कोई और रिजर्व है जिसको वाइप आउट करना है उसको डेबिट में लिखेंगे. क्रेडिटर्स ने बोला पैसे मत दो तो क्रेडिटर्स को डेबिट में लिखेंगे. बैंक ने बोला कि बैंक लोन नहीं दो तो बैंक को डेबिट में लिखेंगे. क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो ये हमारे लिए इनकम है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट में. मैंने सब कुछ डेबिट में लिखा, जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट से डेबिट में किया. इक्विटी एक लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट होता है, इक्विटी का क्रेडिट होता है, लेकिन मैंने डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस किया है. तो इक्विटी का लायबिलिटी कैंसिल जब भी होगा तो वो डेबिट साइड आ जाएगा. इक्विटी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. डेबिट में तो मैंने बता दिया, लेकिन क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम जनरेट कर रहा है.
Okay. Negotiate with equity and preference shareholders to sacrifice some amount. समझ में आया? लाइबिलिटी को क्रेडिट से डेबिट में लेके आते हैं तो हमारी लाइबिलिटी रेड्यूस हो जाती है. लाइबिलिटी रेड्यूस हुई मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड आएगा. अमाउंट सब क्रेडिट साइड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. नेक्स्ट, by reducing the liability, company will get less burdened. Creditors of 5 lakh in the balance sheet, company is unable to pay full amount to creditors. Company will negotiate with creditors. Creditors are ready to accept 50% of money in the form of equity shares of company. Creditors will waive off 50% of the amount. जो waive off है 50% है, यानी इसका 50% 5 लाख का 2,50,000 आपका सीधा सीधा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा. कंपनी के लिए ये इनकम है. क्रेडिट ऑल इनकम्स इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्रेडिट ऑल इनकम्स, ओके, एंड गेन्स इन पीएनएल बोलते हैं ना हम लोग. नॉमिनल में क्या बोलते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन इन पीएनएल. पीएनएल की जगह किसने ली है? टेम्पररी अकाउंट ने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ने ली है. तो जो भी अमाउंट सेक्रीफाइस करेगा, वो अमाउंट हमारा क्रेडिट होते जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, जो पीएनएल की जगह पर बनाया गया है. दूसरी बात, जो क्रेडिटर्स है वो हमारी लायबिलिटी है 5 लाख की, उसको डेबिट साइड लिखेंगे. उसको हम क्या दे रहे हैं बदले में? we are ready to accept 50% of money in the form of equity shares. क्रेडिटर्स खुद बोल रहे हैं कि मुझे इसका 50%, 5 लाख का 50% मुझे शेयर्स दे दो. पैसे तो आप दोगे नहीं, इससे अच्छा आप मुझे शेयर्स दे दो. ठीक है, कंपनी को लॉस हो रहा है तो कहां से पैसे वापस देगी? इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख to equity capital account 2,50,000 to capital reduction account 2,50,000 sacrificed by creditor, waive off by creditor.
हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें. By revaluing the overvalued assets, company will be having true and fair view of their financial statements. Building asset of rupees 1 crore, company has not depreciated from 5 years. Building of 1 crores, company has not depreciated from 5 years. Asset is overvalued. Okay. अभी इस बिल्डिंग की वैल्यू 10 lakhs हो गई है. It's a very old building. Asset is overvalued. Overvalued को हमें क्या करना है? इसका रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? 10 lakhs है at the time of reviving the company. So what you will write? डेबिट साइड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालोगे 90 lakhs. जो अमाउंट कम हुआ है 1 करोड़ से 10 lakhs हो गया वैल्यू, तो कितना कम हो गया वैल्यू? वैल्यू 1 करोड़ था बिल्डिंग का, वो अभी कितना हो गया है? 10 lakhs. तो सीधा 90 lakhs का डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखोगे और टू असेट अकाउंट 90 lakhs. Crediting asset means you are you are reducing the value of asset. जब भी आप असेट एक्चुअली डेबिट होता है, उसको जब कम करना होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं. असेट की वैल्यू को जब भी कम करना होगा आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे. आप असेट की वैल्यू 90 लाख से कम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लिखो टू बिल्डिंग अकाउंट. तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू 90 लाख से कम हुई और कैपिटल रिडक्शन को आप डेबिट करोगे. नॉर्मली हम पीएनएल को डेबिट करते थे पहले, अब हम टेम्पररी अकाउंट बना रहे हैं. जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा आपको एक टेम्पररी अकाउंट बनाना है जो पीएनएल को रिप्लेस करेगा. ठीक है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 90 lakhs टू बिल्डिंग अकाउंट 90 lakhs. कंसल्टेंसी फर्म ने ये सजेशन दिया है. कंसल्टेंसी फर्म ने जब बैलेंस शीट देखा, उन्होंने देखा कि 5 साल से उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है बिल्डिंग को, यानी कि असेट इज ओवर वैल्यूड. इसका सॉल्यूशन क्या निकला? वैल्यू को कम कर दिया 90 लाख से, सीधा वैल्यू बन गई 10 lakhs बिल्डिंग की. Accounting treatment and methods of internal reconstruction of companies. Alteration of share capital. अल्ट्रेशन हम लोग जब करते हैं शेयर कैपिटल में, उसका मतलब क्या होता है? 100 रुपीज का शेयर मैंने अगर 10 रुपीज में कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? सब डिविजन ऑफ शेयर्स. 100 रुपीज की शेयर का फेस वैल्यू को मैंने 10 रुपीज बना दिया. या फिर सेकेंड कंसोलिडेशन, 10 रुपीज के फेस वैल्यू का शेयर मैंने 100 रुपीज में बना दिया तो शेयर्स कम हो जाएंगे. कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स विल रेड्यूस
because you are changing the face value from 10 to 100. In subdivision of shares, number of shares will increase because you are changing the face value from 100 to 10. Number 3 is conversion of shares into stock and vice versa. Variation of shareholders' right. You will change the rate of dividend. You will reduce the rate of dividend of preference shareholders. Earlier, you were paying 12% preference dividend. Now you are paying only 5% preference dividend. From 12 to 5. See, it is a very big change in the rate of dividend. Why it is happening? Because company is having loss. They cannot pay too much high rate of dividend. Next is variation of shareholders' rights, type of shares, reduction in share capital, only paid up value you are changing, compromise or arrangement, surrender of shares. In reduction in share capital, you are changing face value and paid up value both. If you are changing only paid up value, then you have separate entry of capital reduction account. If you are changing face value and paid up value both, then only you have old equity to new equity capital. Note down. Any doubts?